हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेघना और जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट आवर सिंगापुर ट्रिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you can see, I have made all the list here and I'm going to discuss everything so that आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम मलेशिया से सिंगापुर गए थे। आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रीच, हाउ टू बुक योर टिकट्स, कहाँ पे हम ठहरे थे, ट्रैवल कैसा था, द वीज़ा। येस, यू नीड वीज़ा to travel to Singapore even if you stay in Malaysia. So the number one thing is how to reach. So we decided to go by bus and not by flights in order to save money. So it was cheaper to travel by bus and it took us around 5 to 6 hours. Because we went during the day. If you travel at night, the time will significantly reduce by at least you'll require 4 hours, I can say 4 to 5 hours, but for us it took longer because of the traffic and we were traveling by bus. But the bus was very comfortable, I must say. The seats were very good, it was clean, the driver was really nice, the immigration process and everything went on really smoothly. We booked the bus by Redbus, this app. I will put the screenshot here and I will put the link in the description as well. So we booked it by Redbus. The bus name was Star Mart. If I'm not wrong, I'll still put it in the description box for you guys. Next thing is the visa. Yes, you require visa even if you stay in Malaysia. So there are 3-4 important documents that you need to take care of. So the list of documents also I will put it in the description box so you can have all the documents in place. You also need a travel SG card. So for that you have to fill an online form 3 days before arrival into the country. So make sure you get the visa from an authentic visa dealer only. We stayed in V Lavender Hotel and to share my experience of staying there was really nice. Yes, the rooms were small and it was a bit expensive, but that's Singapore for you. Singapore in general is very expensive और rooms भी काफ़ी छोटे होते हैं, तो that's a given. But the place was safe, it was comfortable. They also gave us an upgrade by the way. So हमको थोड़ा सा बड़ा रूम मिला जो हमने बुक किया था उससे, which is great. The view was okay, but ठीक है, हम पूरा दिन बाहर ही घूम रहे थे तो we were not so much into the view. I'll leave all the details in the description box below. Go check it out for yourself. And the main part is that the hotel is extremely near to the metro, so that's a plus and that's the main reason why we booked it. Actually we wanted to travel by metro, so the hotel's location was really close to the metro, which was a plus. Okay, now talking about booking all the activities. So we chose all the activities that we genuinely wanted to do and not just because there's a hype for it. Okay, so what all things we did, definitely you are going to see that in the upcoming vlog after I stop talking. You're going to see all the Singapore footage. And मैंने सारे एक्टिविटीज़ क्लूक ऐप और हेड आउट ऐप से ही बुक किए हैं. आई थिंक मोस्टली तो क्लूक से ही बुक किए, जहाँ पे भी मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था आई चोज दैट. और मैं उन दोनों ऐप्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर पिक्चर पॉपअप कर दूँगी. मैंने सारे कॉस्टिंग एक्सेट्रा मैं ऐसे स्क्रीन पे पॉप कर दूँगी जब वो आएंगे. डे वाइज मैंने फुटेज ऐड की है. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and let's just get started with the video now. So yes, our journey finally began. बस ने हमको बस स्टेशन पे ड्रॉप किया. The bus dropped us at the bus station and after that we booked a grab for ourselves. Grab ऐप से, जिसका फ्लैश मैं स्क्रीन पे कर दूँगी ऐप का. It's very easy and convenient. It was not that cheap but ठीक है. That was the only time जब हमने grab ऐप बुक की. बाकी सारी जर्नी हमने हमेशा मेट्रो से ही की है, but this was the only time when we booked grab. And oh my god, the views were beautiful, the roads were beautiful. और हमें ये सारे आइकॉनिक स्पॉट्स दिखने लगे. हमें गार्डन्स बाय द बे भी दिख रहा था हमारे ग्रैब से, विच बाय द वे वॉज आवर फर्स्ट लोकेशन. जैसे ही हम होटल पहुँचे हमने फटाफट से बैग रखा, चेंज किया एंड वी गॉट रेडी
to go to the metro, which was walking distance 2 minutes from our hotel, which is V Lavender. स्टेशन का नाम भी Lavender ही है, as you can see. यहाँ से हमने फटाफट से फाइंड आउट किया कि कैसे पहुँचना है गार्डन्स बाय द वे, और हम चल पड़े. यहाँ से बस कुछ ही स्टेशंस दूर था वो गार्डन्स बाय द बे, एंड वी रीच देयर. एंड बाय द टाइम वी रीच अंधेरा हो चुका था क्योंकि हमें बस ने थोड़ा सा लेट पहुँचाया. सो हमारा प्लान्स थोड़ा ऑफ हो गया, बट इट्स ओके. वी स्टिल डिसाइडेड टू गो एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स. तो एक बार गार्डन्स बाय द बे पहुँच कर भी बहुत सारा वॉकिंग था. तो मेक श्योर यू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स. अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मेक श्योर यू हैव द ट्रॉली टू कैरी देम, बिकॉज बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. एक शो था जिसके टाइमिंग्स मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी. दो बार होता है ये फ्री शो, द लाइट एंड साउंड शो, द पॉपुलर लाइट एंड साउंड शो एट द गार्डन्स बाय द बे, जो हमें थैंकफुली मिस नहीं किया. हमने देखा, बट येस ऑफ कोर्स जब तक हम पहुँचे वहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी, बट फिर भी हम एंजॉय कर पाए. एटलीस्ट हमने वो शो मिस नहीं किया. इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री शो जो 2 बार होता है. टाइमिंग्स मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर से देखना, बिल्कुल मिस मत करना. इट वॉज सररियल, इट वॉज समथिंग एल्स. अगर आप जल्दी पहुँचोगे तो आपको बैठने के लिए भी जगह मिलेगी. अगर आप हमारी तरह लेट पहुँचोगे तो आपको पूरा शो खड़े रहकर देखना पड़ेगा. क्योंकि हम वीकेंड्स पे गए थे, वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी लाइन थी. तो मेक श्योर करें कि आप वीक डेज़ पर जाए ताकि आपको कम भीड़ मिले और आप सारा चीज़ अच्छे से एंजॉय कर सके. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेड है, बट बहुत सारी चीज़ें फ्री भी है. सो जैसे ही वो शो ख़त्म हुआ हम चल पड़े हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर. एंड द वॉक टूवर्ड्स दैट एक्टिविटी वाज सो ब्यूटिफुल. वी कुड सी दिस ब्यूटिफुल लेक. और ये जो एरिया था, यहाँ पे लोग बाइक चला रहे थे, रेस्टोरेंट में खा रहे थे, वॉक कर रहे थे. इट वाज अ चिल एरिया, बट बहुत ज़्यादा वॉक थी ऑफ कोर्स. बट ये जो सारा एरिया है ना, गार्डन्स बाय द बे और मरीना बे सैंड्स, ज़्यादा दूर नहीं है, आप वॉक कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए. आपका अगर आपके साथ कोई एल्डर्स है तो शायद उनको ज़्यादा लगे, बट वी कुड ईजीली वॉक. तो हमने यहाँ पे लुई विटॉन का शोरूम देखा, एप्पल का शोरूम देखा. सो इट वाज रियली सरियल. जो चीज़ें हम टीवी पे या वीडियोस पे देखते थे वो एक्चुअली हम देख रहे हैं. दिस इज़ द आइकॉनिक मरीना सैंड्स बे बिल्डिंग विच वॉज सो मेस्मराइजिंग. इट वॉज सो सरियल. और रात को ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी जिसके लिए हम जा रहे थे दैट वाज द वाटर शो, वाटर एंड लाइट एंड साउंड शो. अगेन इट वाज ब्रेथ टेकिंग. आई एम नॉट जोकिंग, मैंने इससे बेटर शो नहीं देखा. मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आई कुडंट बिलीव माई आईज़. ये इतना अच्छा था. रियली इट वाज लाइक आप पहुँचो वहाँ पे बस. आई मीन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. सो अब चलते हैं डे 2 की ओर, विच इज़ सेंटोसा आइलैंड. सो हम जल्दी उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह होटल में ही किया और चल पड़े स्टेशन की ओर. एंड लैवेंडर स्टेशन से हम वीवो सिटी स्टेशन चले गए और यहाँ से हमें सेंटोसा आइलैंड के लिए अलग से ट्रेन पकड़नी थी. तो आप देख ही रहे, बिकॉज हम वीकेंड पे गए थे तो बहुत ज़्यादा रश है, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट व्हेन वी सॉ दिस साइड, द यूनिवर्सल स्टूडियोज़, द पॉपुलर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का साइड हमने देखा. ऑफकोर्स हम अंदर नहीं गए बिकॉज वी आर नॉट दैट एडवेंचरस. हमको नहीं पसंद है राइड्स एंड ऑल, बट ऑफकोर्स फ़ोटो तो हम खिंचवाएंगे ही. तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचवाए. बट एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे फॉर डूइंग सम अदर एक्टिविटी जो हमने क्लूक से ही बुक की थी, विच इज़ द सी एक्वेरियम. सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सी एक्वेरियम का स्टार्टिंग है. अभी आगे जो आप देखेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है. सी एक्वेरियम के अंदर का फुटेज, ओ माय गॉड, मैंने ठीक से बिल्कुल भी शूट नहीं किया. आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट द एक्सपीरियंस वर टोटली वर्थ इट. प्राइजेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर मैं स्क्रीन पे पॉपअप कर दूँगी. बट मैंने बिल्कुल ठीक से शूट नहीं किया है. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. 2-3 घंटे लगे हमें टोटल एक्वेरियम घूमने के लिए. यहाँ पे मोर देन 1000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स है, शार्क्स है, डॉल्फिन्स है, डाइवर्स आपको दिखेंगे, सब कुछ है. आई मीन दिस इज़ वर्थ इट. आई मीन बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए. पर हाँ, अच्छे खासे 2-3 घंटे लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. बट इट्स टोटली मेस्मराइजिंग. आपको लगेगा कि आप पानी के अंदर ही है.
ये वाला एरिया तो यहाँ पे हम आधा घंटा लिटरली बैठ गए थे, लोग स्नैक्स वैक्स निकाल के अच्छे से बैठ गए थे, हम एकदम स्क्रीन के सामने जाके बैठे थे। सो हमें तो ऐसा ही लग रहा था हम पानी के अंदर है। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिशेस देखे। अगर आपने स्नॉर्कलिंग नहीं की है तो दिस विल बी काइंड ऑफ अ सिमिलर एक्सपीरियंस। और हम तो, हमारे पास तो बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी है, तो हम तो बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे हर चीज़ को देख के। एवरी टर्न पे हम सरप्राइज़ हो रहे थे एंड इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। ओके, सो इतना चलने के बाद हमने फटाफट लंच कर लिया हम चले गए आइलैंड की ओर। यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो फ्री में चलती है यहाँ, और आप यहाँ पे स्काई कैब से भी आ सकते हो, पर हमने फ्री कार्ड चूज़ किया ऑप्शन। यहाँ पे 3 बीचेस है और तीनों बीचेस बहुत ही ज़्यादा पास है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मतलब सारे बीचेस पे जाने के लिए आप वॉक भी कर सकते हो या फिर आप वो कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने वो फ्री कार्ड यूज़ की थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजी हो गया था हमारे लिए। Okay, so let me now tell you about the 3 beaches. First one is Siloso, second one is Palawan and the third one is Tanjong Beach. बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस है। तो हमने कुछ हमारा लंच 2-2:30 तक ख़त्म कर लिया था और रात के 7 PM तक हम लोग बीच पे ही चिल कर रहे थे। ये तीनों बीचेस पे अल्टरनेटिवली घूम रहे थे। मुझे पर्सनली पलावन बीच सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ पर ही हम लोग ने पानी में भी एंजॉय किया। सिलोसो और तंजौन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे, बट पलावन बीच वाज आइडियल फॉर अस। सो वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एज़ यू कैन सी पूरी बीच लाइफ एंजॉय की हमने। बहुत ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ अगर आपको करना पसंद है तो आपको तंजौंग बीच पे जाना चाहिए। सिलोसो बीच भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पलावन बीच मुझे आइडियल लगा अगर आपको पानी में एंजॉय करना है या फिर जस्ट बीच साइड पे बैठना है, जैसे हमको बैठना पसंद है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए का कार्ड्स तो नॉन स्टॉप चलती ही रहती है, या फिर आप वॉक करके भी जा सकते हो। तो कुछ देर हमने पानी में एंजॉय किया। हमको 7 PM तक हमारा सारा चीज़ एन्जॉयमेंट, पूरा बीच एन्जॉयमेंट ख़त्म करना था, बिकॉज़ उसके बाद हमने एक विंग्स ऑफ टाइम करके शो बुक किया था, जिसके लिए हमें सिलोसो बीच स्टेशन पे पहुंचना था। Okay, so for day 3 we decided to go to Bugis Street. It is one of the most famous shopping market in Singapore. It's one of the cheapest also, but हमें तो ज़्यादा bargain किसी ने करने नहीं दिया. I bought a few souvenirs and fridge magnets from here and that's it. थोड़े से गिफ्ट्स ले लिए, ज़्यादा कुछ हमने यहाँ से क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग तो हमने नहीं की, पर हाँ बहुत सारे अगर आपको चॉकलेट्स वगैरह लेने हैं आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत सारे शॉप्स हैं जो चीप है, बहुत सारे शॉप्स ऐसे भी हैं जो एक्सपेंसिव है। और लकीली हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिल गया जहाँ से हमने लंच कर लिया। वी केम हियर इन द मॉर्निंग और हम आफ्टरनून तक शॉपिंग ही कर रहे थे, और हमने सोचा लिटिल इंडिया जाएंगे वेजिटेरियन फूड के लिए, बट लकीली वी फाउंड अ गुड प्लेस टू ईट हियर। यहाँ पे हमें इंडियन डोसा और कुछ फ्राइज़ मिल गए जो कि वेज थे। सो वी गॉट लकी एंड यहाँ पे एयर कंडीशन प्लेस में हमको बैठ के खाने को मिल गया। सो वी वर वेरी हैप्पी एंड देन वी कंटिन्यूड विद द शॉपिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट बुगीज़ इज़ दैट ये रूफ़ इसके ऊपर बिल्ट है, तो आपको बाहर का जो हॉट सन है वो फील नहीं होगा। सो दैट्स अ प्लस। नेक्स्ट वी वेंट टू मॉस्क लेन, जो कि बुगी स्ट्रीट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हमने बस लोकल से पूछा कि कहाँ पे क्या है एंड वी जस्ट वेंट। गूगल मैप्स पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्रिटी स्ट्रीट है, मॉस्क ही सामने है। And the next place that we went to on day 3 was the iconic Merlion Park. Woohoo!
यस, यहाँ से मरीना सैंड्स बे, द आइकॉनिक एप्पल स्टोर, लुई विटॉन का स्टोर, सब चीज़ दिखता है। द प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल और हम एकदम दिन में गए थे तो इट वाज सो ब्यूटिफुल सीनिक। हाँ, थोड़ा सा हॉट सन था तो थोड़ा सा गर्मी हो रहा था और हीट का फीलिंग आ रहा था, बट या वी कुड बेयर दैट। जो सब चीज़ हमने अभी तक सिर्फ वीडियोस पे देखा था वो हम सामने देख रहे थे, सो वी वर वेरी हैप्पी एंड वी वेंट इन द आफ्टरनून, सो रश भी कम था। ये जो अभी आप देख रहे हैं वो थोड़ा शाम होने को, जैसे 4:30 था तब ये ऐसा रश होने लगा। सो हमको बहुत अच्छे पिक्चर्स और फ़ोटोज़ खींचने मिले, सो वी वर वेरी हैप्पी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर। एंड दैट्स इट, डे 3 ख़त्म और हमारे वापस कुआलालंपुर आने का टाइम हो गया। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने डिनर पैक करवाया, यहाँ बैठ के थोड़ा खाया भी और हम थोड़ा पैकिंग वैकिंग करके मस्त खा के वापस जा रहे हैं। वी लव सिंगापुर एंड वी कांट वेट टू कम बैक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो।